یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے گجرات کے ضلع بھروچ کی تعلقہ انکلیشور کے سنجالی گاؤں میں ASDA اور سنجالی ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ نے اقرا انگلش میڈیم ہائی اسکول انکلیشور کے سوجنیہ سے ایک شام قومی ایکتا کے نام ایک آل انڈیا مشاعرے کوی سمیلن کا آیوجن کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت مولانا شعیب نے کی۔ اس موقع پر مولانا گورا بھی موجود رہے۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز شخصیت محمد عثمان خان اور کو کنوینر رہے نیک دل مہمان نواز شخصیت حنیف قاضی۔ اس مشاعرے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو فکر اقبال اردو پوئٹری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبداللہ فیصل نے کہا کہ شمیم کوثر کے بعد 2 منٹ وہ آپ سے گفتگو کریں گے، تو شمیم کوثر کے بعد میں معروف صحافی ڈاکٹر عبداللہ فیصل سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ عثمان بھائی کی اجازت سے مائک پر اپنے خیالات کا اظہار کریں یا جو وہ کرنا چاہیں، بہرحال میں ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، شاعروں کے بیچ حائل ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس مشاعرے کی جو خصوصیات ہیں، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے مشاعرے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر و ناظم، مصنف و مؤلف ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ یہ اعترافیہ ہے آپ کے ادبی، تصنیفی، تالیفی اور شعری خدمات کا۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ یقین مانیے مبارکباد کے مستحق ہیں اہل انکلیشور کی جو بڑی خاموشی کے ساتھ اردو کا یہ مشاعرہ سن رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ سرد موسم میں سردی کو دور کرتے ہوئے جو سرگرمی دکھائی ہے، جو شرکت کی اس مشاعرے میں، وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں عثمان خان ان کے رفقا کو، مشاعرے کی کمیٹی کے ہر شخص کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سے کچھ سالوں پہلے عثمان خان نے مشاعرے کی جو بنیاد یہاں ڈالی تھی، اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ پرزور تالیاں عثمان خان، مولانا شعیب اور ان کے رفقا کے لیے۔ آج ہم اسٹیج پر جو دیکھ رہے ہیں ان خصوصیات میں سے کئی خصوصیتیں ہیں۔ جن شعراء نے پیشگی ابھی اشعار سنا کر کے گئے ہیں، واقعی میں ان کے اشعار میں درد تھا، کرب تھا اور بہت اچھے اشعار سنائے۔ اور جو شعراء موجود ہیں ہمارے اس اسٹیج پر، ممتاز شعراء ہیں ہندوستان کے۔ الطاف ضیاء صاحب ہیں، عظم شاکری ہیں، کاوش رضالوی ہیں اور کلیم ضیاء ہیں، جہاز دیوبندی صاحب ہیں، وسیم راجپوری ہیں اور ہماری شاعرات بھی تشریف رکھتی ہیں۔ 2 شاعرات اپنے اشعار سنا چکی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک بات کہنا چاہوں گا اردو کے تعلق سے۔ ہمارے ممتاز شعراء موجود ہیں اور اردو ایک تہذیب کا نام ہے۔ اردو زبان کے بارے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جیتی جاگتی مثال ہماری اسٹیج پر گنگا جمنی تہذیب کی علامت دکھائی دے رہی ہے۔ مسٹر شرما صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر راجندر بیدی شہر کی روح کو جو جلا بخش رہے ہیں ہمارے جیت صاحب بھی ہیں، موجود سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے مشاعرے کی خصوصیت ہے۔ بے شک عثمان غنی صاحب کی حکمت عملی اور مصلحت کو داد دینی پڑے گی کہ تمام لوگوں کو یہاں مدعو کر کے ایک قومی یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا اردو کے تعلق سے کہ اردو کسی قوم کی، کسی ملت کی، کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، بے شک، بلکہ وہ ہندوستان کی زبان ہے۔ یہیں پلی ہے، یہیں بڑی ہے، یہیں کی پاسدار ہے، وہیں سے رواج پائی ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت اور اردو زبان وہ زبان ہے
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब शादी हुई थी, कमला नेहरू की जब शादी हुई थी, तो उर्दू जबान में कार्ड छापा गया था, छपा था, आप देख सकते हैं नेट पर। बेशक। इसलिए इस जबान को किसी मजहब के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, किसी कौम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, सबसे शर्मनाक बात यह है कि हम अपनी औलाद को औलाद नहीं कहते हैं। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान की पैदावार जुबान है। कभी इस जबान को दहशतगर्दी का जबान कहा गया, दहशतगर्दों की जबान कहा गया, कभी गैर मुल्की जबान का ताना दिया गया। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर माजिद देवबंदी और हमारे मुमताज शोरा अगर इस तरीके से जिंदा रहे और उर्दू की खिदमत करते रहे, उस्मान गनी, मौलाना शोएब और अहले अंकेश्वर की जिंदा जो है जावेदी मिसाल जो दे रहे हैं, ये लोग जिंदा दिली के साथ सबूत देते रहे तो उर्दू इंशाल्लाह मिट नहीं सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उर्दू के लिए जो कोशा है, इसके फरोग के लिए डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब जिनको आज एजाज दिया जा रहा है, चंद जुमले उनके लिए। मैं ये वक्त नहीं है कि बाकायदा मकाला पेश करूं, लेकिन चंद बातें जो हैं वो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब 40 साल से मुशायरा पढ़ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 4 दहे से जो शख्स उर्दू की खिदमत कर रहा है, अगर उसका एतराफ ना किया जाए, एतराफिया ना पेश किया जाए, तो हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। और आज ये शुरुआत उस्मान गनी साहब ने की है। मैं ऐलान करता हूं डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब कि आपका इंशाअल्लाह बाबे के अंदर ऑल इंडिया उर्दू काउंसिल अल मिसबाह की तरफ से जश्न माजिद देवबंदी मनाया जाएगा। और हमारे ये शोरा जो है मौजूद, मैं ऐलान करता हूं, और इसी माह जनवरी में हम इनसे तारीख लेंगे। जब तारीख देंगे और शोरा जो है मौजूद है, कुछ शोरा को मुंतखब जश्न माजिद देवबंदी मनाऊंगा इंशाअल्लाह। और बड़े बड़े मुशायरे हमने किए हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंस हमने की है, ऐलान करता हूं मैं इसका। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने 9 किताबें मंजर आम पर आकर के दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं, जिसमें नस्र भी शामिल है, नज्म भी शामिल है, हमदो नात पर मुश्तमिल जो है किताबें भी शामिल हैं। और आप मुसन्निफ भी हैं, मुअल्लिफ भी हैं, मुमताज सहाफ़ी भी हैं, कई अखबारात में आपके कॉलम भी छपते हैं। आपने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कई ममालिक में आपने मुशायरे पढ़े हैं। जहां जहां उर्दू बोली पढ़ी जाती है, समझी जाती है, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने उन मुशायरों में, शायरी नशिस्तों में आपने शिरकत की है और उर्दू को फरोग दिया है। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को 45 से ज्यादा एजाजात हासिल हैं, 45 से ज्यादा एजाज हासिल हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की गई है इनकी शख्सियत पर, और लाहौर यूनिवर्सिटी से एमफिल भी की जा रही है। आपने जो शायरी की है, अभी मेरी गुफ्तगू होटल में हुई, बताया इन्होंने कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस मिशन को लेना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ जिसको इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे अपनी शेर के जरिया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माजिद देवबंदी साहब। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको लंबी हयात दे, सेहत और सलामती के साथ। मेरे भाई और दोस्तों, एक बात और है कि डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने, जब उन्होंने वजीर ममलकत का जो है अपने नातवा कंधे पर यह बार संभाला, तो उर्दू की जो खिदमत की है वो रोजे रोशन की तरह आया है। आप दिल्ली उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, और जब उसके सदर या चेयरमैन बनाए गए तो उर्दू दुनिया में एक नाम रोशन किया। और मुल्क के शोरा को, मुल्क के वदबा को बुला करके आपने वहाँ कॉन्फ्रेंसें की, अदबी नशिस्तें मुनाकिद की, मुशायरे किए। इसके लिए आपके खिदमात बहुत ज्यादा हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, आप एक मुमताज शायर हैं, और उर्दू की जो खिदमत आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला मजीद आपको तौफीक अता करे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जो मुशायरों पर मुतशायरों का कब्जा है, अल्ताफ जिया साहब, वसीम साहब, कलीम साहब और जितने हमारे आजम शाकिरी साहब, उनसे आजाद कराया जाए। लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेकर के मुतशायर चले जाते हैं और सिर्फ दहशतगर्दाना जो है शायरी करते हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, 8-10 मुशायरे हमने करवाए हैं, बॉम्बे से लेकर गांव तक,
उन मुशायरों में हमने भरपूर कोशिश की है कि उर्दू नमाज शोरा को मदऊद किया जाए और इंशाअल्लाह इस सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले अंकलेश्वर को कि इस सर्द मौसम में आप बड़ी दिलजमई के साथ, दिल सोजी के साथ अपने शोरा का कलाम सुन रहे हैं। मैं उस्मान गनी साहब, उनके रफ़का कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि जो डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का एतराफिया पेश किया जा रहा है, मोमेंटो अवार्ड दिया जा रहा है, वो आप लेकर के आए और आपकी खिदमत पे पेश करें। वो मुनीर भाई कहाँ गए? मुनीर भाई, हाँ मुनीर भाई नहीं है क्या? इधर आ जाओ। अरे आप लोग काय आवाज खड़ा दूर खड़ा जा। आवाज आ जाओ मौसा, आवाज मारा। भी आ गई, पुरजोर तालियां डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब के लिए। बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं, नाज़िम मुशायरा हैं। हमारे बीच नेपाल से भी नुमाइंदगी हो गई। एक उभरता हुआ नौजवान शायर जो नौजवानों की नुमाइंदगी करता है, नईम साहिल कपिल वस्तवी। हजरात बहुत शुक्रिया। ये उस्मान भाई, उनके रुफ़क़ा और आप सबकी नवाजिश है। ये मोहब्बतें हैं, कुछ नहीं हैं। सच ये है कि हम इल्म शोहरत में बड़े कितने हों, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। हम इल्म शोहरत में बड़े कितने हों, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि आज फ़िक्र इक़बाल उर्दू शायरी अवार्ड से मुझे नवाजा गया। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन आपने नवाजा तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इक़बाल की फ़िक्रिया लहजे और इक़बाल के फ़िक्री अशार की नुमाइंदगी अपने असलाफ बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी और कुरान और हदीस के हवाले से जो पैगाम पेश करना मेरा मिशन है, मैं उसमें और आगे बढ़ूं। आपकी दुआएं मुझे दरकार हैं। मैं आप सब बेइंतहा ममनून हूँ कि आपने एक तालिब इल्म को नवाजा, गो कि मैं इस काबिल नहीं था, मगर आपने नवाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।